ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज partition values. Okay, ठीक है. For understanding partition values we have learned few things, right? So वो वापस ही रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले we have seen what do you mean by an average. How many types of averages are there? Two. ठीक है, so first type of average, arithmetic average, and the second type is positional average. All right, so in arithmetic average we calculate what? Mean. In positional average we calculate what? Median and mode. Okay, so mean, by mean what do you understand? By mean what do you understand? If for example ठीक है, if we have a set of data like this, okay, so the value of every data can be considered as x. All right, the value of every data can be considered as x. Means this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, x5 and x6. So therefore number of observation is small n equals to 6. Okay, so mean is written as x bar. Mean is written as x bar. Got it? So the formula of mean is sum of all observation. Means आप लोग क्या बोलोगे? Summation of xi from I equals to 1 till n. So x is changing from 1, x1, it is 2, then x2, then it is 3, then x3 and so on. Okay, so n यहाँ पे क्या है? 6 है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6. 6 से ज़्यादा जाएगा आगे नहीं. सो इट विल बी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय n. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इज हाउ मच? 30. Is it 30? 30 divided by? Then the answer is, so mean क्या मिला आपको? 5. Got it? Mean क्या होता है समझ में आ गया? Okay. Now, what do you understand by mode? Median अभी बताऊंगा. What do you understand by mode? Okay. So mode क्या होता है guys? Yes, you can say in a set of data, the value of the variable, variable मतलब x, so the value of the variable which is repeated maximum number of times. What do you mean by this definition? Let's understand by example. ठीक है, so set of data होगा आपके पास like this: 7, 8, 9, 7, 3, 2, 8, 6, 9, 7, 3. All right. So इस set of data में मैक्सिमम टाइम ऐसी कौन सी वैल्यू है वेरिएबल की जो बार बार रिपीट हो रही है? 7. सो देयरफॉर सिंपल, द मोड इज 7. गॉट इट? क्लियर है? ठीक है. नाउ
to understand partition value and what is the importance of this chapter, what is the use of this chapter, ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहा है सबके दिमाग में. We understand each and every formulas, we by heart it, we wrote it, ठीक है, and solve the sum. What is the actual application of this chapter in your real life or in your career? ठीक है, आप इसको यूज़ कैसे करोगे इस चैप्टर को? आज तक हमने कभी भी एप्लीकेशन अच्छे से देखा नहीं है. सो लेट्स होप बाय दिस लेक्चर यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग एंड द एक्चुअल यूज ऑफ दिस चैप्टर विच इज पार्टीशन वैल्यूज. ओके, ऑलराइट. सो अंडरस्टैंड पार्टीशन वैल्यू, you should understand what do you mean by median very very accurately. okay, इसके लिए मैंने मीडियन आपको अभी तक बताया नहीं था, बट अब हम देखेंगे मीडियन क्या होता है. ठीक है, और मीडियन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो. डेटा जब अनग्रुप्ड होता है या जब डेटा ग्रुप्ड होता है उस समय मीडियन कैसे ढूंढते हैं और मीडियन का एक्चुअल मतलब क्या होता है. टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोना write few things and understand it. Okay, all right. So everyone take out your notes, ठीक है ना. So let's understand what do you mean by median. So median is nothing but it is an positional average. median को क्या बोलोगे आप? पोजिशनल एवरेज. क्या मतलब होता है इसका? लेट्स अंडरस्टैंड इन टू सेट्स ऑफ डेटा. ठीक है ना. सो पहले मीडियन आप लिख लो. मीडियन इज इंपॉर्टेंट measure of location. It is an important measure of location. Got it? ठीक है. Now let's understand क्या बोल रहा हूँ मैं. What do you mean by measure of location? Important measure of location. ठीक है. So if in case you have two types of data we have, right? So data can be ungrouped, data can be grouped. Let's understand median for ungrouped. ठीक है. For ungrouped या raw data, you can say it like this, ungrouped or raw data, or you can say or an individual series. इंडिविजुअल सीरीज. तो तीन नाम है इसके. द डेटा कैन बी अनग्रुप्ड, डेटा कैन बी रॉ, और द सीरीज कैन बी एन इंडिविजुअल सीरीज. गॉट इट? ठीक है. अब इसमें इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन, देयर आर टू केसेस. यहाँ पे लिखो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट median, there are two cases. Okay, there are two cases. Now case 1, ठीक है. case 1 can be if the number of observation are odd. If the number of observations are odd. एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज लाइक दिस. ठीक है. Now every time if we have to calculate the median, then we have to arrange the data in
a specific order. All right, the specific order should be in ascending or it should be in descending. Got it? ठीक है. So मैं अगर मेरे डेटा को ascending में अरेंज करता हूँ, so how will it look? ठीक है. Ascending means it will be 30, 32, 39, 42, 50, 53, 55, okay, 62 and 75. Is that clear? Is that clear? Okay. Now I have arranged the data in ascending order. All right. Now median is the positional average. Median is what? The positional average. Number of observations are n equals to 9. So number of observations are odd. 9 is an odd number. Getting it? All right. Now if the number of observations are odd, then the formula, or you can say the positional average, will be your middle value. Will be your middle value. Middle value यहाँ पर, ठीक है. एक सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी, एक सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी विच विल बी योर मीडियन, विच विल बी योर मीडियन. उसका फॉर्मूला गोज बाय लाइक दिस. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू n plus 1 the whole upon 2 observation. Clear है? So note it down everyone. Okay. All right. Now take a screenshot. Okay. All right. So guys, now what is the answer? The value of this observation, the value of this observation will be your median. So which is this observation? N plus 1 by 2, which is equals to 9 plus 1, that is 10, 10 by 2, 10 by 2th observation, which is equals to 5th observation. All right, getting it? Now आप चेक करोगे कि आपके सेट ऑफ डेटा में जो आपने स्पेसिफिकली अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है. तो 1, 2, 3, 4, 5. So therefore your 5th observation value is 50. ठीक है. So of course median is equals to. Now what do you mean by this? Now what do you mean by this? This is very important that we don't understand in any of the class. ठीक है, which we didn't understand in any of the class जब से हम मीडियन पढ़ रहे हैं. Getting my point? Now let's imagine ये डेटा था, रॉ डेटा था, I don't know. मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ कि these are the marks of the students in a particular subject, for example maths, and the paper was out of 100. Got it? अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो ये सारे क्या है, मार्क्स हैं उन बच्चों के. समझ गए? ठीक है. मैं इमेजिन करता हूँ कि जो क्लास की स्ट्रेंथ होगी वो होगी 200. मीन्स इन अ क्लास देर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 200 स्टूडेंट्स. गेटिंग इट? सो 200 स्टूडेंट्स में ये मीडियन बोल रहा है 50. इसका क्या मतलब है मालूम है आप लोगों को? कि 50% of the students have 50 marks or less than 50 marks, and 50% of students have 50 marks or more than 50 marks. अब 50% क्या होता है? 200 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में, 50% मतलब 100. सो ऐसा कोई डेटा, ये मार्क्स है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 50 या 50 से कम मिला होगा.
तो 50, ये 50 वो बताने की कोशिश कर रहा है। दीज आर दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स। तो मीडियन आया 50 मार्क्स। तो मैं किसको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ गाइस? टू whom I am trying to distribute? the students, तो 50 मार्क्स से नीचे वाले बच्चे इतने हो गए, 50 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे इतने हो गए, एंड सो ऑन। गेटिंग इट? मीडियन का एक्चुअल मतलब ये है। गेटिंग इट? समझ गए? सो आई एम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है? वो क्या होता है वो हम लोग अभी समझ जाएंगे। ओके, आफ्टर केस 2, ये केस 1 था, अब देखेंगे केस 2। सबको समझा? अच्छा, मैं यही रॉ डेटा यूज़ कर सकता हूँ फॉर 300 स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 300 बच्चे होते, तो ये 50 मीडियन आता तभी भी, तो वो क्या बोलता कि 150 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेस देन 50 मार्क्स अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। गॉट इट? समझ में आ गया? अगर 500 स्टूडेंट्स होते तो 250 स्टूडेंट्स हैव लेस देन 50 मार्क्स। गेटिंग इट? आई एम डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी, आई एम डिवाइडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with the help of median. समझ में आ गया? Okay, all right. Now let's move on to your case 2. Case 2 goes like, if the number of observation, if the number of observation are even, got it? So क्या बोलोगे आप? For example, the data goes like this. ठीक है? कैलकुलेट द मीडियन, यहाँ पर ऐसा बोला है। दिस इज अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है? दिस कैन बी एनीथिंग, एज, मार्क्स, वट एवर इट इज, वट एवर यू अंडरस्टैंड, वेट, प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो, रॉ डेटा है ना, यू कैन पुट एनीथिंग इन टू दिस। क्लियर है? नाउ ये डेटा है, इज दिस डेटा अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर? क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन। हमको क्या करना है? डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है। सो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है? तो डेटा कैसा हो जाएगा? असेंडिंग में अगर अरेंज कर रहे हैं तो 32, 47, 55, 65, 70, 78, 86, 93, 95 and 100. Got it? The data has been arranged in a ascending order. ठीक है? Now, how many number of observations we have? So therefore, n small n is equals to 10. ठीक है? अब यहाँ पर मीडियन की मुझे कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, या कोई भी सिंगल मिडल वैल्यू नहीं मिलेगी, टू बी स्पेसिफिक। ठीक है ना? चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हाफ इज 5, राइट? बट डेटा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो क्या ये मिडिल वैल्यू होगी? क्योंकि डेटा के इस तरफ कितने वैल्यूज़ हैं? 4 वैल्यूज़ हैं। इस तरफ कितने वैल्यूज़ हैं? तो दिस इज नॉट अ मिडिल वैल्यू। मैं 70 को मिडिल वैल्यू नहीं बोल सकता। क्या मैं 78 को मिडिल वैल्यू बोल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएंगे? 5 वैल्यूज़ आ जाएंगे और यहाँ पर 4 वैल्यूज़। तो अगेन मेरा डेटा जो है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। गेटिंग इट? दिस प्रॉब्लम अराइज बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास सिंगल मिडल वैल्यू तो नहीं है, बट मेरे पास क्या है? एक मिडल पेयर है। क्या है मेरे पास? एक मिडल
मिडल पेयर है विच इज 70 एंड 78। समझ में आया? नाउ इस मिडल पेयर को यूज करके आई कैन फाइंड आउट दी मीडियन। ठीक है, सो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो मीडियन का फॉर्मूला गोज बाय लाइक दिस। इट इज द व्हाट एक्चुअली पोजिशनल एवरेज। तो हमको मैटर करता है क्या? हमारा वैल्यू का लोकेशन, अब जैसे ये कौन से लोकेशन पे 5th, ये कौन से लोकेशन पे 6th, तो वो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए हमारे पास। सो मीडियन का फॉर्मूला गोज बाय लाइक दिस। मीडियन इज इक्वल्स टू एवरेज, मीडियन इज इक्वल्स टू एवरेज, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन of n by tooth observation and n plus 2 by tooth observation। एवरेज और अरिथमेटिक मीन of n by tooth observation and n plus 2 by tooth observation। Is that clear? इसका मतलब कितने वैल्यूज हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है? 2। तो जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? द होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो n by tooth observation will be equals to फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, राइट? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू कौन सी है? 7। फिर n plus 2 by tooth observation, तो n plus 2 means 10, 10 plus 2 is 12, 12 by 2 is 6, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू कौन सा है? 70। तो 70 और 78 का हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसका मतलब योर मीडियन विल बी इक्वल्स टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 78 by 2, which is equals to 74. Okay, so the median goes by 74। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है। नाउ सी द थिंग हियर, 74 आ गया ना। अब मेरे को बताओ क्या 74 ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हमारे डेटा में है? ठीक है, बट आई कैन से दैट whatever this is, 50% of people, for example this is again marks of the students, these are the marks of the students। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को 32 मिला होगा, कुछ स्टूडेंट्स को 47, कुछ स्टूडेंट्स को 55 एंड सो ऑन। तो आई कैन से दैट जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल 200 स्टूडेंट्स वर देयर या 300 स्टूडेंट्स वर देयर, नाउ आई कैन से फॉर एग्जाम्पल 300 स्टूडेंट्स है, तो आई कैन से दैट 150 of the students got less than 74 marks। 74, नहीं 70 नहीं 78, but they got less than 74 marks। Got it? समझ में आ गया? एक्चुअल मतलब क्या है मीडियन का? We are dividing the data into 2 equal parts। We are trying to divide the data into 2 equal, we are trying to divide the number of students into 2 equal parts। Getting it? तो 50% को इतना मिला, 50% को इतना मिला। ठीक है, less than 50, more than 50%। Got it? Okay, so note it down, case 2। Done everyone? Yes, okay. Is this done? Yes। Okay, write it down। So समझ में आ गया गाइस?
So these are the example to understand if you have to calculate median for raw data for individual series. Got it? सबको क्लियर है? Now, हो गया? Now let's understand if your data is grouped for grouped data but to understand group data we need to understand few more things. मतलब before starting group data का example I am trying to understand कि आप लोगों को एक term है which is known as cumulative frequency. What do you mean by that? Anybody here that understands cumulative frequency? No, right? So let's understand what do you mean by cumulative frequency. ठीक है? तो इसमें you can understand what do you mean by frequency. इसमें you will understand what do you mean by cumulative frequency. ठीक है ना? So let's write. Okay? What do you mean by cumulative frequency? AKA also known as CF. Also known as CF. So guys, in cumulative frequency there are two types again. There are two types. Okay? First is less than type. Second is more than type. Is that clear? First is less than type, second is more than type. Okay. So what do you understand by less than or more than? Okay. Now let's understand it by an example. Now for the following data, represented in age in years. ठीक है? So this is your question. All right. Now मैं क्या बोल रहा हूँ? For the following data which is represented in age in years. Age in years. So X is the age. X is the age. And F is the frequency. X is the age and F is the frequency. Means this is age 1, this is age 2, 3, 4, 5 and 6. Of course we are talking about child या children's, right? Small children's जिनकी एज क्या है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल. Getting it? So there is a you can say kindergarten मालूम है आप लोगों को? ठीक है. kindergarten में या क्या बोलते हैं उसको नर्सरी में देयर आर चिल्ड्रंस, राइट? सो क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर 1 साल के कितने बच्चे आए हुए हैं, 2 साल के कितने बच्चे आए हुए हैं? अच्छा, 1 साल के बच्चे नर्सरी नहीं जाते, ठीक है.
बट आए हुए हैं, कुछ काम था तो आए हुए हैं, ठीक है। सो 1 साल के कितने बच्चे हैं, 2 साल के कितने हैं, फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। 1 साल के बच्चे कितनी बार रिपीट हुए हैं, 2 साल के बच्चे कितनी बार रिपीट हुए, 7 बार, ठीक है। नॉट अ करेक्ट वे टू से कि कितनी बार रिपीट हुए, बट टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली आई एम ट्राइंग टू से लाइक दैट, ओके। सो 6 साल के बच्चे कितनी बार हैं रिपीट हुए, तो मतलब कितनी बार रिपीट हुए, मतलब 4 बच्चे 6 साल के, ठीक है, 6 बच्चे 5 साल के, 11 बच्चे, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना कि हमारा स्ट्रेंथ 49 का है, तो 10 बच्चों को अभी जो भी टेस्ट होगा कितने मार्क्स का था वो 30, तो हो सकता है 10 बच्चों को 25 मिले, तो 25 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ, 10 टाइम्स, क्योंकि 10 बच्चों को 25 मार्क्स मिला था, सो ऑन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेटिंग इट, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड CF, that is cumulative frequency, okay। ठीक है, ठीक है। सो CF लेस देन और मोर देन, यहीं से हम लोग समझ में आ जाएगा, ओके। ठीक है, नाउ CF लेस देन, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, टू कलेक्ट, टू क्यूमुलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, टू कलेक्ट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन लेस देन टाइप, हाउ वी राइट, ठीक है। सो जो सबसे पहले लेस देन टाइप के बारे में बात करेंगे, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है गाइस, 5, ठीक है। नाउ इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट डू वी डू, कि ये जो 5 है, वी ऐड दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि द सेकेंड फ्रीक्वेंसी, द सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी वी ऐड विद द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, द फॉर्मर फ्रीक्वेंसी। तो 5 + 7 विल बिकम 12। अब नया फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, तो 12 + 15, गेटिंग इट। तो 12 + 15 इज 27, 27 + 11 इज 38, 38 + 6 is 44, and 44 + 4 is 48, ठीक है। नाउ गाइस ज़रा इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, कितना आता है बताओ, $48 आ रहा है, ठीक है। ये भी कितना आ रहा है आपका, 48 ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का क्या मतलब, सो 1 साल के कितने बच्चे हैं, 2 साल के कितने बच्चे हैं,
बट 2 साल से इक्वल या 2 साल से कम टोटल कितने बच्चे हैं? ये बात समझ में आई? 3 साल या 3 साल से कम ईयर्स के कितने बच्चे हैं हमारे पास? तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताना चाह रहा है, आपको समझ में आया? तो इन ऑल 27 बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल के हैं या 3 साल से कम। समझ में आ गया बात? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो 48 बच्चे, टोटल 48 बच्चे ही थे ना, तो 48 बच्चे ऐसे होंगे जो 6 साल या 6 साल से कम होंगे। समझ गया? CF लेस देन टाइप, इज दैट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड CF मोर देन टाइप। मोर देन टाइप की शुरुआत होती है फ्रॉम बॉटम। क्लियर? सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 4। ना, लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 4। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने लेस देन टाइप में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यूज की थी, लेस देन टाइप में सबसे पहले क्या लिखा था? पहली फ्रीक्वेंसी 5। मोर देन टाइप में हम लोग पहले शुरुआत करेंगे विद लास्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 4। ठीक है? और जो हमने काम लेस देन टाइप में किया वो यहाँ पर हम अपसाइड डाउन करेंगे। ठीक है? सो 4 + 6 हमने क्या किया था? 5 + 7 फिर 12 + 15, ऐसा ना। अब हम क्या करेंगे? 4 + 6 तो कितना आ जाएगा? फिर क्या करेंगे? 10 + विच इज़ 21। फिर क्या करेंगे? 21 + 15 विच इज़ इक्वल्स टू, फिर 36 + 7 इज़ 43, फिर 43 + 5 इज़ 48। देखो यहाँ पर भी 48 मिला, यहाँ पर भी 48 है, विच इज़ दिस। इज दैट क्लियर? 1 2 3 सब 48 है। अब मोर देन टाइप क्या बोलता है? लेट्स। तो मोर देन टाइप क्या बोल रहा है कि 1 साल के बच्चे या 1 साल से जहाँ तक भी आए हैं, जितने भी हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल से बड़े हैं? 1 साल के हैं या 1 साल से बड़े? 48। ठीक है? अब मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2 साल के हैं या 2 साल से बड़े हैं? 43। तो इन 5 को मैंने माइनस कर दिया ना, इन शॉर्ट, क्योंकि वो 1 साल के थे, तो दे आर बेसिकली नॉट इन दिस लिस्ट। समझ में आया? अब मैं आपको बोलूँ कि 4 साल के बच्चे या 4 साल से बड़े बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कितने लोग हैं? तो सीधे सीधे आप बोल रहे हो 21 बच्चे ऐसे होंगे जो 4 साल के होंगे या 4 साल से बड़े, यानी कि 5 और 6 ईयर्स के होंगे। इज दैट क्लियर? तो मोर देन टाइप क्या बताना चाहता है कि समझ गए? लेस देन टाइप क्या बताना चाहता है? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? समझ गए? ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू दी थिंग विच वी हैव टू डू। सब लोग नोट डाउन कर लो, ये हो गया एवरीवन? ओके, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है, फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुझे यहाँ पर मीडियन या ये या कुछ नहीं ढूंढना था, मुझे सिर्फ समझना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेट कर रहा हूँ मैं, कलेक्ट कर रहा हूँ ना, 2 डेटा कलेक्ट हो गए यहाँ पर कितने डेटा कलेक्ट हो गए? 6 डेटा। 6 साल के कितने बच्चे आए, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? उनका डेटा। ओके, नाउ और एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा है जिसको कोई नहीं समझा, सबको समझ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? श्योर? ओके, ओके। अभी तक आपने क्या सीखा? मीडियन निकालना सीखा फॉर अनग्रुप्ड डेटा। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल, ठीक है। So our example goes like this.
find the median for the following data. Representing the age in years. ठीक है, सेम थिंग विच विल अंडरस्टैंड इन एज इन ईयर्स जो अभी हमने देखा, ठीक है, बट एग्जाम्पल अलग है और हमको अब ढूंढना है मीडियन। उस एग्जाम्पल में हमको मीडियन ढूंढना वॉज नॉट आर मोटिव। उस एग्जाम्पल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो समझना हमारा मोटिव था। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन गोज लाइक दिस, ठीक है। एज एंड ईयर्स, ठीक है। Okay, this is your question. All right. Now let's see the solution. कि अगर मीडियन आपको ढूंढना है फॉर दिस डेटा, मतलब मुझे क्या पता करना है कि 50% ऑफ लोग जितने आए हैं यहाँ पर, कोई फंक्शन है, ठीक है, वो कोई बर्थडे पार्टी है, बच्चे आए हुए हैं 3 से लेके 10 साल की उम्र के, है ना, बोल सकते हो। तो कितने बच्चे आए हैं वो कुछ भी हो सकता है, राइट। आप इसको प्लस करोगे तो वो आपको मिलेगा। तो कितने बच्चों की एज आपको डिवाइड करनी है बेसिकली, मतलब कितने, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि 5 साल के बच्चे हैं और उससे ऊपर। तो आई कैन से दैट 50% ऑफ द किड्स हैज़ द एज लेस देन 5, या 50% ऑफ द किड्स हैज़ एज मोर देन 5। बेसिकली मेरे को ये ढूंढना है ना, मीडियन मतलब यही बोल रहा है ना, ठीक है। तो मीडियन निकलेगा क्या यहाँ पर, बेसिकली वो किसकी निकलेगी, एज की। 3, 4, 5, 6, 7, 8 फॉर एग्जांपल 6 निकलती है। तो आई कैन से दैट कि जितने भी बच्चे इस बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं, ठीक है, तो आई कैन से दैट कि 50% ऑफ बच्चे 6 ईयर्स या 6 ईयर्स से कम है, 50% ऑफ बच्चे 6 ईयर्स या 6 ईयर्स से ज़्यादा है। मुझे बस यही निकालना, इससे ज़्यादा कुछ निकालना नहीं। उसको निकालने का तरीका है जो हम लोग अभी देखेंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ढूंढ रहे हैं हम? मीडियन ढूंढ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को यानी कि किड्स को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ देयर एज, अच्छा 6 साल से फॉर एग्जांपल ये 6 है ना, तो 6 साल के बच्चे ये वाला गेम खेलेंगे, 6 साल से कम और 6 साल के, या 6 साल के बच्चे या उससे जो ज़्यादा एज के हैं वो ये वाला गेम खेलेंगे। समझ में आ रहा है ना? डिवाइड क्यों करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम 6 साल या 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनको सेरेलैक खिलाएंगे, 6 साल से जो ज़्यादा है उनको हम केक देंगे जो कि दिस अलग फ्लेवर का होगा, राइट, जो बच्चे नहीं खा सकते। अरे केक के नाम पे तो तुम लोग एकदम वो हो गए, सर ऐसा क्यों, बच्चे को केक क्यों नहीं, है ना। मे भी हो सकता है आइस केक को नहीं देना चाहिए बच्चों को, ठंडा हो जाएगा, राइट, प्रॉब्लमेटिक इशू है। अच्छा, 6 साल से बड़े बच्चे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, 6 साल से कम बच्चे वाले कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे। समझ में आया? गेटिंग इट? या फिर किसी घर पे पार्टी है, रिटर्न गिफ्ट देना है, तो 6 साल के बच्चे जो 6 साल से बड़े हैं उनको हम ये वाला गिफ्ट देंगे, जो 6 साल से
या 6 साल से कम बच्चे हैं, हम उनको ये वाला गिफ्ट देंगे। तो मुझे कितना गिफ्ट लाना पड़ेगा, तो वो यहाँ से पता चलेगा। समझ में आया? तो जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे उसका 50% मैं 6 साल या 6 साल से कम बच्चे वाले गिफ्ट लाऊंगा। कोई गिफ्ट इमेजिन कर लो यार, ठीक है ना, कोई एक इमेजिन कर लो, फॉर एग्जांपल कार दे दो, एक छोटी सी कार दे दो जो कि इनको मिलेगी 6 साल के हैं या 6 साल से कम है। और इमेजिन कर लो कि इनको हम लोग क्या देंगे, फॉर एग्जांपल गिफ्ट में कुछ पढ़ाई की चीज़ दे देंगे, विच इज़ वेरी बोरिंग थिंग, कुछ पाउच दे देंगे, ठीक है, जो उनको हेल्प करेगा उनके स्कूल जाने में, ठीक है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पाउच दे देंगे, ठीक है, स्पाइडरमैन, बारबी, व्हाटएवर इट इज़। समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं हम? डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किसके लिए क्या लेकर आना है, मुझे पता लगेगा कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए कि वो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को डिवाइड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एज, विद द हेल्प ऑफ वो भी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 50% ऑफ डेटा इज मोर, 50% ऑफ डेटा इज लेस। गॉट इट? ओके, क्या लिखा है? हाँ सॉरी, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतने हैं और एज इनकी इतनी है। सॉरी गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, गॉट इट? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर डेटा ऐसा होगा जहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी दी गई है यानी कि एज, और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है यानी कि कितने लोग हैं उस एज के, ठीक है ना। तो आपको अगर उसका मीडियन निकालना है तो आपको ये 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपके टेबल में, जो कि होगा क्या, एक्स, एफ एन, सी एफ ऑफ लेस देन टाइप, सी एफ ऑफ मोर देन टाइप, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आई एम कंफर्टेबल विथ सी एफ ऑफ लेस देन टाइप। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या क्या है गाइस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 टोटल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 14, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, सो ऐसी टेबल आपकी होगी, योर आंसर, योर सोल्यूशन, ठीक है ना। नाउ लेस देन टाइप का सी एफ निकालते हैं। सबसे पहले 14, क्योंकि लेस देन टाइप में हम पहली फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर 14 प्लस 20, फिर 34 प्लस 40, 74 प्लस 54, 128 प्लस 40, 168 प्लस 18, गॉट इट ना।
एंड अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा? अब पता चल गया ना, सीधे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत, जो यहाँ पर आएगा वो ही ये होगा। इज दैट क्लियर? नाउ मुझे क्या पता करना है कि कितने परसेंट, अब 200 लोग हो गए, कितने बच्चे हैं पार्टी में? 200 मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर 6 मेरा मीडियन निकल कर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 100 पीपल या 100 किड्स आर लेस दैन 6, 100 kids are less than 6 and 100 kids are more than 6 years। समझ में आ गया? क्योंकि 200 लोग आए, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट अपना किड्स को डिवाइड कर रहा हूँ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ देयर एज। समझ में आया? ओके, सो मीडियन अब निकलेगा कैसे वो हमको देखना है, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दी मीडियन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डेटा को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ? 2। तो मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड करूँगा? 2, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो, हियर n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। गेटिंग इट? ये टेबल बना लेना है सबने, ओके। सो देयरफॉर n/2, क्योंकि मुझे क्या निकालना है गाइस? मीडियन निकालना है, ठीक है। सो n/2 विल बी इक्वल्स टू 200/2 विच इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। नाउ मुझे ये वैल्यू मिल गई 100। अब मैं क्या चेक करूंगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास आऊंगा कि 100 जो किड्स हैं उनकी एज क्या होगी, या उससे कितनी रेंज में होगी, कम या ज़्यादा, वो मुझे चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लूँगा और यहाँ पे ये चेक करूँगा कि 100 किड्स से जस्ट ज़्यादा नंबर कहाँ पर है, 100 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर 120। तो इस क्लास को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस क्लास को क्या किया मैंने? सेलेक्ट किया, क्योंकि यहीं पर मुझे ये दिख रहा था कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 6 है या 6 से कम है, बट आंसर एक्चुअली 100 नहीं, 128 बच्चे ऐसे हैं जिसकी एज 6 है या 6 से कम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है ना कि 128 बच्चे ऐसे हैं पार्टी में जिनकी एज 6 है या 6 से कम। गेटिंग इट? बट मुझे किससे मतलब है? 100 बच्चों से, मुझे 128 बच्चों से मतलब नहीं है, ठीक है। माई कंसर्न इज 100 किड्स। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरा मीडियन 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे? 100 किड्स, बट यहाँ पर कितने किड्स आ रहे हैं सिर्फ, तो मेरा डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ अभी तक नहीं है। तो वो 100 मुझे कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 किड्स है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है, बट मुझे किससे मतलब है? 100 किड्स से। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आई कैन से दैट कि ये क्लास आपने सिलेक्ट करी बिकॉज यहाँ पर आपका 100 वैल्यू है, ठीक है। सो योर मीडियन विल बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? 100 से जस्ट बड़ा, CF के कॉलम में 100 से जस्ट बड़ा कौन है? 128। वही क्लास आप सिलेक्ट कर लोगे फॉर योर मीडियन। तो 6 इज योर मीडियन, 6 इज योर मीडियन। इज दैट क्लियर? तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर आर 100 किड्स विच आर लेस देन 6 ईयर। मिनिमम 100 तो है ही ना, एक्चुअली आंसर 128 है। एक्चुअली आंसर क्या है? बट 100 तो है ना, यही मेरा कंसर्न था। तो देयर आर 100 किड्स विच आर लेस देन 6। तो मेरे को एक रफ आइडिया मिल गया मुझे गिफ्ट्स कौन से लाने हैं, कितने लाने हैं। मिनिमम 100 तो
बाकी इन 28 को अरेंज कर देंगे कुछ ना कुछ। बच्चे हैं ना। ओके गाइस, मजाक था, ठीक है ना, समझ गए। मीडियन का क्या मतलब है? मुझे मिल गया मेरा आंसर, मैं बोलूँगा जाओ 100 पाउच लेकर आओ, 100 कार लेकर आ जाओ। समझ में आ गया? अरेंज कर दूंगा गिफ्ट्स 200 लोगों में। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर मीडियन which helps you to divide the frequency into two equal parts. समझ में आया? That is why your median is known as a partition value. A partition करना मतलब डिवाइड करना। तो पार्टीशन वैल्यू कौन है? 6 है, क्योंकि 6 क्या कर रही है? आपके फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो योर मीडियन इज द पार्टीशन वैल्यू। गॉट इट एवरीवन? समझ गए? नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will understand what you mean by quartile, decile and percentile. समझ गए? अभी तक आपको मीडियन का मतलब जो भी पता था, क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है? क्यों करना होता है ये सारी चीज़ें, वो क्लियर है? ओके एवरीवन, ऑलराइट, थैंक यू। ये नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है।